Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students, as you know that we have discussed about the pre-primary education yesterday. Today we are going to discuss about the second topic of fourth unit, that is primary education. In this topic we will discuss about the concept, aims and problems of primary education. So far the concept of pre-primary education is concerned. Dear students, in certain respect, the term primary education and elementary education are used interchangeably. Elementary education is the first foundation step of the entire education of a child. As you know that this stage of education plays an important role in the whole life of a child. अगर ये स्टेज जो है एजुकेशन का एक बच्चे ने बेहतरीन तरीके से इस स्टेज में एजुकेशन हासिल की है, तो उसकी जो फ्यूचर एजुकेशन है, we will expect better education for him if the foundation stage is good. So far this stage is concerned. Education is a lifelong process. The education of a child starts from this elementary level. But in the real sense, the education of an individual starts from his birth and it ends when the individual dies. Dear students, as you know that education is a lifelong process and the education of every individual starts from this elementary level, or we can say elementary education period. In this stage, various concepts of the child gets cleared, like how to dress, how to eat, how to talk, how to behave. And the child in this stage is able to read, write and do some arithmetics. इस स्टेज में जो बच्चा आता है वो इस काबिल हो जाता है कि वो लिख सकता है, पढ़ सकता है और वो मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी कर सकता है। इसके बावजूद इस बच्चे में इतनी कैपेसिटी होती है, डेवलप हुई होती है कैपेसिटी, कि वो किस तरीके के कपड़े लगाए, खाना किस तरीके से खाए, अपनी क्लीनलीनेस जो है सफाई का वो ख्याल रख सकता है। नाउ इन दिस स्टेज ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, वो अपनी जो बात है वो आप तक पहुंचा सकता है। इट मीन्स दैट दिस स्टेज plays an important role in developing the personality of the child. We can say that this stage is responsible for shaping out the personality of the students. Dear students, as you know that this stage, primary stage, and we call it elementary stage also, this stage is of this stage starts from 6 to 14 years. It means that the education of a child in elementary level starts from the 6 till 14 years. Now, here this stage has been divided into two stages. Dear students, ये जो elementary school है, elementary level है, इसको दो हिस्सों में, दो स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज जो है इसका लोअर प्राइमरी जिसको हम कहते हैं, तो लोअर प्राइमरी जो है, डियर स्टूडेंट्स, this it includes children between the age group of
6 to 11 ईयर्स। तो 6 to 11 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो इस लोअर प्राइमरी में पढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक, जो हम जानते हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टेज। और जो इसका नेक्स्ट स्टेज है अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी जो है इट इज अनदर स्टेज ऑफ एलिमेंट्री लेवल। तो ये स्टेज जो है 12 to 14 ईयर्स, ये स्टेज जो है 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए होता है। इसमें क्लासेस जो है फ्रॉम 6th to 8th, यानी कि 3 साल जो है बच्चे के इस अपर प्राइमरी में होते हैं, 6th, 7th and 8th। It means that 3 years of child from class 6 to 8th class. Dear students, this is the concept of primary education. Now we will discuss about the aims and objectives of primary education. So far, the aims and objectives of primary education are concerned. Dear students, as you know that this stage is very important stage of life because it is considered as the foundation stage of the entire education of a child. अगर इस स्टेज में बच्चे की तालीम जो है सही तरीके से होगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो फ्यूचर एजुकेशन है वो बेटर होगी। इसके कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एजुकेशन जो है वो बच्चों के क्लियर होने चाहिए इस स्टेज में। तो जिम्मेदारी है यहाँ पे उस्तादों की, जिम्मेदारी है, उस्तादों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि वो बच्चों को बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर करे। और अब हम बात कर रहे हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की। तो सबसे पहले क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है इसके प्राइमरी एजुकेशन के? नंबर 1, टू गेट मास्टरी ओवर द टूल्स ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले ये बच्चा जान जाता है कि इसको किन किन चीजों से ये सीख सकता है, उन पर इसकी महारत करनी बहुत जरूरी है। तो ये नंबर 1 था। नंबर 2 इज दैट टू ब्रिंग कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। तो एज वी नो दैट a child has, the personality of a child has various aspects like physical, social, mental, moral, ethical. So these all these aspects of personality must be developed properly. Number 3 जो है to prepare child for good citizenship and national integration. तो as we know that the child is the citizen of tomorrow. बच्चा जो है आने वाले दौर का शहरी होता है, तो इसको एक अच्छा सिटीजन बनाए, इसको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए, इसको एक होशियार सिटीजन बनाए। He should know his rights and duties. उसको अपने हुकूक, अपने फराइज का पता होना चाहिए। He should know that if he is having the right to go through a road, he should know that on the other hand it is the responsibility of him, every person to keep this road clean. तो अगर हम एक अच्छा शहरी बनाने चाहते हैं तो हमें उसे एक बेहतरीन तालीम देनी बहुत जरूरी है, तभी जाके वो एक बेहतरीन शख्स बन सकता है, अच्छी पर्सनालिटी का मालिक बन सकता है। नंबर 4 टू डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में जो है कौमी तसव्वुर जो है उनमें पैदा करें, उनमें बेदार करें कि वो उनमें पेट्रियटिज्म जैसी फीलिंग्स अपने वतन के मुतालिक पैदा करें, ताकि उन्हें अपने देश, अपने वतन के साथ मोहब्बत हो। वो अपनी जो सर्विस है वो अपने कौम के लिए करें। नंबर 5 इज
to inculcate scientific attitude among the students. Number 6 is to inculcate the sense of dignity of labor. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, डिग्निटी ऑफ लेबर जैसी फीलिंग्स डेवलप करना बच्चों में। तो इस चीज से जो है उन्हें बच्चों को कभी कभी स्कूल में काम पे भी लगाना चाहिए, क्योंकि इस चीज से जो है उनमें काम के तई मोहब्बत बढ़ती है, ताकि घर जाके जब वो घर जाते हैं, अगर वालिदैन उनको कोई काम फरमाते हैं तो वो खुशी खुशी वो काम करें। तो डिग्निटी ऑफ लेबर जैसा सेंस जो है हमें बच्चों में पैदा करना चाहिए। टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ, तो बच्चों को जो है लाइफ के लिए तैयार करना। एज वी नो दैट लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें बच्चों को हर तरीके से इसको ट्रेन करना है, इसको तैयार करना है, ताकि वो किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सके और इसका सोल्यूशन ढूंढ कर इसे पार कर सके। तो दिस इज द दिस वाज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। Inshallah, tomorrow we will discuss about the problems of primary education. Thank you very much.